Hello friends, I am Yogesh Kumar Deshmukh, Assistant Professor, Mechanical Department of Bharati College of Engineering Technology. Today in Power Plant Engineering, we are going to learn about topic Steam Power Plant and its type. We are going to deal with part 2 of this topic, as earlier we have learned about how a steam power plant looks like and what are their important amenities. Okay. We are going to learn about the introduction, layout of steam power plant and different types of fuels used in steam power plant, different types of stokers also. Okay. A steam power plant converts the chemical energy of fossil fuel, coal, into mechanical energy and electrical energy. Generally, power plant works in a principle of conservation of energy, or energy is converted into one form to another form. Energy is neither created nor destroyed. Okay, we did not form any new form of energy from chemical. We just only convert the fuels energy into different energies. Okay, that is fossil fuel coal energy into mechanical energy. Fossil fuel coal energy means chemical energy converted into mechanical energy and then into electrical energy. This is done by raising the steam in boiler. Okay, राइजिंग द स्टीम इन बॉयलर. कैसे होता है ये? स्टीम में कन्वर्ट करते हैं वाटर को, और उसको कहाँ बनता है वो स्टीम? बॉयलर में. फिर एक्सपेंडिंग इट थ्रू द टर्बाइंस, देन द स्टीम इज एक्सपांडेड इन थ्रू द टर्बाइंस एंड देन टर्बाइन, व्हाट हैपेंस इन टर्बाइन? द कपलिंग द टर्बाइंस टू द एंड कपलिंग द टर्बाइन टू द जनरेटर. Generator is coupled with turbine. As turbine blades are moved with the steam generated in the boiler, then the steam energy is converted into mechanical energy by rotating the turbine blades. This mechanical energy rotates the generator windings, which invert connected into electrical energy, which converts mechanical energy into electrical energy. What's the purpose of steam power plant? To produce electricity, to produce steam for industrial process like textiles, food products, food manufacturers, paper mills, etc. also. Okay. What are the layout of power plant? The layout of power plant consists of 4 different channels, 4 different systems. First is coal and ash handling, second is air and fuel gas system, third is feed water and steam generation system, fourth is cooling water system. पहला कोल और ऐश हैंडलिंग, जो फ्यूल है वो उसका फ्यूल का आना और जलने के बाद जो ऐश निकलेगा उसका सिस्टम. दूसरा है एयर और फ्लू गैसेस, जो हवा है और जो फ्लू गैसेस कैसे कैसे कहाँ मूव होगा वो एक सिस्टम. तीसरा है वाटर, पानी का, पानी से स्टीम बनना और स्टीम से वापस फिर पानी से स्टीम. ठीक है. चौथा है कूलिंग वाटर सिस्टम, जो प्रोसेस गर्म हो गए हैं, जो स्टीम गर्म है उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग वाटर लगता है, तो उसका एक सिस्टम. ये 4 बेसिक सिस्टम से बना हुआ है आपका लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट. ओके. कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम बॉयलर प्लांट्स. देखिए स्टीम पावर प्लांट में क्या क्या है? बॉयलर सबसे मेन यूनिट है. बॉयलर में क्या क्या आता है? सुपर हीटर, रीहीटर, इकोनोमाइज़र, एयर हीटर. ठीक. दूसरा है टरबाइन. स्टीम टरबाइन चाहिए. बॉयलर में स्टीम बनेगा, स्टीम को रन करने के टरबाइन फिर जनरेटर, फिर स्टीम गर्म हो गया ठंडा करने के लिए कंडेंसर, फिर कंडेंसर के पानी को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर. ठीक है. और पानी घुमाने के लिए सर्कुलेटिंग वाटर पंप्स. बॉयलर में पानी भेजने के लिए बॉयलर फीड पंप. फिर वैगन टिपलर, जो कोयला आएगा उसको डंप करने के लिए वैगन टिपलर. ठीक है. फिर क्रशर हाउस, जो कोयला आएगा वो लम्प फॉर्म में आएगा, उसको क्रश करना होगा, फाइन टर्मरिक पाउडर की जैसा फाइन पाउडर करना पड़ेगा. फिर कोल मिल, जहाँ कोल को तोड़ना पड़ेगा. इंड्यूस्ड ड्राफ्ट सिस्टम, फैन सिस्टम, जो फैन है अंदर भेजने के लिए आपका कंबशन चैम्बर के लिए. ओके. और आपका प्रेशर मेंटेन करने के लिए ऐश प्रिसिपिटेटर, फ्लाई ऐश जो निकलेगा उसको कलेक्ट करने के लिए. बॉयलर चिमनी, जो फ्लू गैसेस निकलेगा जलने के बाद गर्म हवा उसको छोड़ने के लिए एटमॉस्फेयर चिमनी. फोर्स ड्राफ्ट फैन, एफडी फैन, ये कंबशन के लिए यूज़ होगा जो हवा और फ्लू गैसेस को मूव करने के लिए. ठीक है. फिर है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. वाटर जो है बॉयलर में भेजते हैं जो हम, उसे ट्रीट किया जाता है केमिकली. क्यों ट्रीट किया जाता है? क्योंकि बॉयलर में डिफरेंट तरीके के सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सॉल्ट्स क्या करते हैं अंदर जाने के बाद अगर गर्म किया जाए, ठंडा किया जाए, जैसे हम लोग पानी में गंजी में पानी गर्म करते हैं इन अ यूटेंसिल वी बॉयल वाटर, some lines or some dark marks remain after boiling and cooling down of water. This is called scare formation.
दिस स्केल फॉर्म इज फॉर्म ड्यू टू many such minerals present over here. Okay, water contains many different types of minerals, sodium, potassium. Okay, अगर सोडियम प्रेजेंट है पानी में तो सोडियम क्या करता है, एक सोडा काम करता है, सोडा में सोडियम होता है जो आपका झाग फॉर्म करता है, फोम। तो अगर यही बॉयलर पे चले गया और बॉयलर में सर्कुलेट होते रहेगा फोर्स से, तो क्या होगा, कोएगुलेशन की वजह से झाग बनने लगेगा, और वो झाग क्या करेगा, वहाँ पर रस्ट फॉर्मेशन के लिए बबल क्रिएट कर देगा, तो ऑक्सीडेशन होने की वजह से रस्ट हो जाएगा बॉयलर चैम्बर में। इसीलिए वाटर का ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से पूरे ओर्स जो हैं वो रिमूव कर लेते हैं, और जितने मिनरल्स हैं उनको भी रिमूव कर लिया जाता है, ताकि वहाँ पर बॉयलर में स्केल फॉर्मेशन और ये रस्ट जैसी प्रॉब्लम ना आए। ओके, कंट्रोल रूम, CCR कंट्रोल रूम, जहाँ से कंट्रोल किया जाएगा हर एक यूनिट को, हर एक पंप्स को, हर एक मोटर्स को। ओके, स्विच यार्ड, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी उसको स्विच यार्ड भेजा जाएगा, जहाँ से वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा दूसरी जगह पे। ठीक है, देखिए जनरल लेआउट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। यहाँ पर ये क्या है, कोल स्टोरेज, कोयला आया स्टोरेज में आया, कोल हैंडलिंग प्लांट में गया, कोल हैंडलिंग पॉइंट से बॉयलर चले गया। ठीक है, फिर बॉयलर में क्या हुआ, बॉयलर में जला तो यहाँ पर फ्लू गैसेस निकला और ऐश निकला, ऐश हैंडलिंग प्लांट गया, ऐश स्टोरेज में ऐश कलेक्ट हो गया। ठीक है, फ्लू गैसेस यहाँ से निकला, कहाँ गया, सुपर हीटर में, सुपर हीटर से इकोनोमाइज़र में, फिर एयर प्रीटर में, फिर हॉट एयर वापस आ गया बॉयलर पे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, इकोनोमाइज़र से भी वापस फ्लू गैसेस बाहर आए, इधर बॉयलर पे आए, सॉरी इकोनोमाइज़र से जो है पानी आएगा, पानी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पानी गया, ये रिवर है, रिवर से आपका वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर पे आया। ठीक है, वाटर ट्रीटमेंट चैम्बर से कहाँ गया, ये कंडेंसर यूनिट पे, कंडेंसर सॉरी ये यहाँ से कूलिंग टावर के लिए गया, रिवर से कूलिंग वाटर से यहाँ पर जो पंप लगा हुआ है ये क्या कंडेंसर में गया, स्टीम जो आ रहा है स्टीम को ठंडा किया और वापस गर्म होके फिर कूलिंग टावर में ठंडा होने आ गया, और ये प्रॉपर मिक्स होते रहा, ये साइकिल चलते रहा। और यहाँ से कंडेंसर, ये पानी कहाँ गया, यहाँ से बॉयलर फीड पंप में गया, फीड वाटर पंप, फीड वाटर हीटर पे गया। ठीक है, फिर यहाँ से कहाँ गया, ये इकोनोमाइज़र में, इकोनोमाइज़र से फिर गया बॉयलर पे, बॉयलर से फिर सुपर हीटर पे, सुपर हीटर से कहाँ गया, टरबाइन पे, टरबाइन में रन होने के बाद फिर ठंडा हो गया तो कहाँ गया, कंडेंसर पे, कंडेंसर में ठंडा किया गया, फिर यहाँ से कंडेंसर एक्टर पंप लगा हुआ है, पंप से फिर वापस फीड लाइन पे भेज दिया गया। ठीक है, ये साइकिल चलता रहा। और जो हवा था, फ्लू गैसेस का हवा था, वो कहाँ से ऐसे एयर प्रीटर से होते गर्म होते हुए कहाँ चले गया, चिमनी पे। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन, और ये क्या है, फोर्स ड्राफ्ट, यहाँ से गर्म हवा भेज रहे हैं जो एयर प्रीटर में गर्म हो रहा है, किससे, फ्लू गैसेस से। ठीक है, पार्शियल चैम्बर होते हैं, मिक्स नहीं होते ये। ठीक है, गर्म हुआ फिर यहाँ से बॉयलर पे आता है, और ये यहाँ से फ्लू गैसेस ठंडा होते हुए चिमनी पे बाहर। टरबाइन से यहाँ देखिए जनरेटर कनेक्ट हुआ है, जनरेटर के बाद अल्टरनेटर लगा हुआ है, यहाँ एक एक्साइटर है, क्यों, क्योंकि शुरू में टरबाइन नहीं चलता रहता तो घुमाना पड़ता है, तो एक्साइटेशन इसीलिए काम आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अल्टरनेटर लगा हुआ, अल्टरनेटर से डीसी करंट में कन्वर्ट हो गए, स्विच यार्ड में चले गए। यहाँ पर आइसोलेशन, सर्किट ब्रेकर ये सब लगे हुए हैं, ये बस बार है, 3 अलग अलग लाइन्स हैं, तीनों लाइन्स में फिर थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो गया। तो ये एक जनरल लेआउट है स्टीम पावर प्लांट का। ठीक है, जिसमें क्या क्या है, कोल हैंडलिंग सिस्टम है, एयर सिस्टम है, ठीक है, फीड वाटर सिस्टम है, कूलिंग वाटर सिस्टम है, ये चारों साइकिल से बना हुआ है आपका पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट का एक जनरल लेआउट। कोल ऐश हैंडलिंग, देखिए कोल अराइव्स टू द स्टोरेज यार्ड एंड आफ्टर नेसेसरी हैंडलिंग पासेस टू द फर्नेस थ्रू फ्यूल फीडिंग चैम्बर। ठीक है, क्या होता है, कोल जब स्विच यार्ड में, सॉरी कोल अपन कोल यार्ड में जब आता है तो वहाँ पर हॉपर्स बने होते हैं, हॉपर्स में वो कोल गिरता है, और जो लंप फॉर्म में कोल होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो ग्रेट उस साइज़ के होते हैं वो उसमें अंदर हॉपर में चले जाते हैं। फिर हॉपर के नीचे पे कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, कन्वेयर बेल्ट से वो कोयले जाते हैं स्टोरेज यार्ड पे। ठीक है, स्टोरेज यार्ड में वहाँ क्या रहता है, स्टैकर रिक्लेमर लगा रहता है। स्टैकर रिक्लेमर वो क्या करता है, स्टैकिंग का फॉर्म करता है, स्टैक एक लंप फॉर्म में स्टैक बनाता है टीले के जैसा। ठीक है, और उसको स्टोर करते जाता है। और रिक्लेमर क्या करता है, जब जहाँ से कोल की जरूरत होती है तो वहाँ से वापस वो रिक्लेम कर लेता है, उसी में से ही सेम मशीनरी होती है जिसमें कन्वेयर बेल्ट्स लगे होते हैं, एक स्टैकिंग का काम करता है, दूसरा रिक्लेमिंग का काम करता है। ठीक है, वो रिक्लेम करके फिर क्या करता है, वापस रिक्लेमर से, स्टैकर रिक्लेमर के बाद जो कोल लंप बनता है उसको हम लोग
वाटर स्प्रे करते रहते हैं, क्योंकि कोल इकट्ठा होने से गर्म होने लगता है और बर्न होने लगता है। कभी भी कोल का स्टोरेज यार्ड देखेंगे वहाँ से हल्के हल्के धुएं निकलते रहते हैं। दिस बिकॉज एस कोल gets heated when collected at a stack formation, so a water spray is done time to time, okay, to make it cool. ठीक है, अब ये यहाँ से कोयला स्टैकर में रिक्लेमर में रिक्लेम किया गया, वापस कन्वेयर बेल्ट से ये चले जाता है हॉपर में, और हॉपर से फिर जाता है ये क्रशर पे। क्रशर में क्या होता है, यहाँ पर बॉल मिल लगे होते हैं, पावर प्लांट में बॉल मिल लगे होते हैं। बॉल मिल में ये क्रश होता है, पूरा फाइन पाउडर्स में क्रश होता है, और हॉट एयर के थ्रू इसको कैरी करके फिर बॉयलर सेक्शन में ले जाया जाता है। हॉट एयर क्यों करते हैं, क्योंकि कोयला क्या होता है उससे अगर उसमें थोड़ा भी वेट कोल है तो वो ड्राई हो जाता है और लिफ्ट करने में आसान रहता है। अगर वेट कोल रहेगा तो उसको जलने में टाइम लगेगा, ड्राई कोल रहेगा तो जल्दी जल जाएगा। और गर्म हवा से क्या होता है, कोयला भी गर्म हो जाता है, तो बॉयलर में ले आते ही वो इंस्टेंट बर्न हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऐश आफ्टर कंबशन। कोल हैंडलिंग में देखिए, कोल एंड ऐश आफ्टर कंबशन कलेक्ट्स इट बैक ऑफ द बॉयलर एंड इज रिमूव्ड एट द ऐश स्टोरेज यार्ड। ठीक है, कोयला जलने के बाद ऐश राख बन जाता है, तो दैट ऐश इज यूज बाय डिफरेंट प्लांट्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। दैट्स वन ऑफ दिस एग्जाम्पल इज द सीमेंट इंडस्ट्री एंड ब्रिक्स इंडस्ट्रीज विच यूजेस दिस फ्लाई ऐश as is the ingredient in the composition of cement and also in the fly ash bricks. Okay, most of the ways this fly ash is also used for constructing roads. Okay, as fly ash is more collected in more amount in power plant. Okay, power plant में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्लाई एश निकलता है, तो उसको जितने भी प्लांट्स को हम सेल आउट करते हैं उसके बाद भी हमारे पास फ्लाई एश रह जाता है। कुछ फ्लाई एश ड्राई होते हैं, कुछ फ्लाई एश जो होते हैं सॉफ्ट जो वेट होते हैं उसको फ्लाई एश बोलते हैं, और ड्राई वेट ऐश भी होते हैं जो नीचे कलेक्ट होते हैं बॉयलर के, तो उनको हम लोग स्लरी फॉर्म करके एक स्लरी पॉन्ड में सेंड कर देते हैं और वापस वहाँ से वाटर को एक्सट्रैक्ट करके वापस ले आते हैं और फिर से इसमें स्लरी बनाते हैं और पाइपिंग के थ्रू इसको वापस डंप करते जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस फ्लाई ऐश इज़ यूज्ड फॉर लेवलिंग अप द कोल माइंस। ओके, कोल माइंस को लेवलिंग करने का काम भी फ्लाई ऐश से करते हैं, क्योंकि हम लोग कोल एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं और वो फॉलो होते जा रहा है, तो उसमें हम लोग फ्लाई ऐश डंप करते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एयर एंड फ्लू गैस सिस्टम। एयर एंड फ्लू गैस सिस्टम, एयर इज टेकन इन फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेयर थ्रू द एक्शन ऑफ अ फोर्स्ड और इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। दो फैन लगाते हैं हम लोग एयर के लिए, एक फोर्स्ड ड्राफ्ट होता है, एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। फोर्स्ड ड्राफ्ट क्या करता है, अंदर का जो बॉयलर है उसका एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट क्या करता है, उस फ्लू गैसेस को जो अंदर बर्न हो रहा है उसको एक पाथ प्रोवाइड करता है किस तरह से मूव करना है, और वो इंड्यूस ड्राफ्ट कहाँ लगा रहता है, चिमनी के जस्ट पहले, ताकि वो वहाँ से सक करके चिमनी से बाहर निकाल सके। और फोर्स ड्राफ्ट लगा होता है बॉयलर के पहले। ठीक है, ताकि बॉयलर में हवा भेजना होता है, तो बॉयलर में जब हम लोग हवा भेजते हैं तो उसको एयर प्रीहीटर से भेजते हैं। जो फ्लू गैसेस जो एग्जॉस्ट में सबसे लास्ट में आता है वो एयर प्रीहीटर में जाता है, तो वहाँ क्या करता है, ये जो एटमॉस्फेयर एयर है उसको गर्म कर देता है। गर्म हवा भेजने से कंबशन जो है हमारा इंक्रीज होता है, रैपिड कंबशन होता है अंदर पे। ठीक है, देखिए बोला गया passes on the furnace through the air preheater where it is being preheated by the flue gases which passes to the chimney by preheater, because while leaving flue gases directly into the chimney, their flue gases is so hot, it will be a waste for us to to dump in the chimney, dump it into the chimney. Okay, when the flue gas is moving out from the boiler से जब निकलता रहता है flue gas, it is too much hot and its heat energy is used to preheat the air coming inside the boiler through air preheater. Okay, next channel है हमारा feed water and steam generation system. Feed water system, condensate leaving the condenser is first heated in a closed feed water heater through extracted steam from the lowest pressure extraction point of the turbine, deaerator economizer boiler. ठीक, एक डीएरेटर होता है, एक सेक्शन होता है फीड वाटर। जब हम लोग बॉयलर में भेजते हैं, डायरेक्ट बॉयलर में नहीं भेजते हैं, तो डीएरेटर में भेजते हैं। डीएरेटर में क्या करते हैं, स्टीम का एक सेक्शन, एक स्लाइड सेक्शन वहाँ निकल के उसमें डीएरेटर में आता है, ताकि उसको थोड़ा सा गर्म कर जाए, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म। फिर वो इकोनोमाइज़र में जाता है, जहाँ पर क्या होता है, फ्लू गैसेज जो आफ्टर सुपर हीटर के बाद निकलते हैं फ्लू गैसेज, वो इकोनोमाइज़र में जाते हैं ताकि इन पानी को थोड़ा गर्म कर सकें। क्योंकि हम लोग ठंडा पानी बॉयलर में नहीं भेज सकते, बॉयलर का टेम्परेचर हाई है, और ठंडा पानी वहाँ पर भेजने से जैसा तेल में होता है, हम लोग गर्म तेल पे हल्का सा पानी ड्रॉपलेट फेंकते हैं तो क्या होता है, वो जोर से स्क्वैशिंग आवाज़ से स्प्रेड करता है और कई बार फूटने का चांस होता है। तो वही बॉयलर ड्रम तो
क्लोज चैम्बर है, उसके अंदर अगर हम गर्म पानी के अंदर ठंडा पानी मिलाएंगे तो स्प्लैशिंग होगा और फूट जाएगा बॉयलर ड्रम। इसीलिए इकोनोमाइज़र में उसको गर्म करने के बाद फिर उसको हम लोग बॉयलर पे भेजते हैं, ठीक है। और वहाँ स्टीम जनरेशन होता है। स्टीम जो जनरेट होता है वो भी बॉयलर सेक्शन में, अलग अलग सेक्शंस में होता है। वहाँ पर भी फिर रीहीटर, सुपर हीटर लगे होते हैं। रीहीटर का, सुपर हीटर का काम क्या है, जो स्टीम है उसको वापस फिर से हीट करते हैं। तो उससे क्या होता है, बॉयलर ड्रम से जब स्टीम निकलती है तो थोड़ी सी ड्राई हो सकती है, थोड़ी सी वेट हो सकती है। तो उसको हम लोग कंप्लीट ड्राई और सेचूरेटेड स्टीम बनाने के लिए उसको हम लोग फिर से बॉयलर सेक्शन में भेजते हैं। और वहाँ पर फिर से उसको हीट करने के बाद जब हाई प्रेशर स्टीम बनता है तब उसको हम लोग हाई प्रेशर टरबाइन को रन करने के लिए भेजते हैं। हाई प्रेशर टरबाइन को रन होने के बाद वो स्टीम थोड़ी सी ठंडी होती है, ज़्यादा ठंडी नहीं होती, थोड़ी सी ठंडी होती है। तो वापस उसको बॉयलर में लेके आके रीहीट चैम्बर पे डालते हैं। रीहीटर लगे होते हैं। रीहीटर में क्या होता है, फिर से वो फ्लू गैसेस सुपर हीटर के बाद जो आगे जाते रहते हैं वो रीहीटर में जाते हैं। रीहीटर में क्या होता है, फिर से गर्म होता है स्टीम, फिर उसको हम लोग इंटरमीडिएट टरबाइन और उसके बाद लो प्रेशर टरबाइन पे रन कराते हैं। इससे क्या होता है, हमारी टरबाइन है जो प्लांट की एफिशिएंसी वो बढ़ जाती है 2 से 3%, ठीक है। इसीलिए सुपर हीटर और रीहीटर हम लोग लगाते हैं। In boiler, the water circulates due to different intensity of water in the low temperature and high temperature of the boiler, ठीक है। डेंसिटी की वजह से वाटर मूव करता है। वेट स्ट्रीम फ्रॉम द बॉयलर इज हीटेड अप सुपर हीटेड। मैंने कहा कि वेट स्ट्रीम रहता है, उसको सुपर हीटर में भेजते हैं, फिर प्राइम मूवर एचपी टरबाइन जाता है, फिर सुपर हीटर से निकल के फिर वापस हीटर में जाके एलपी टरबाइन, फिर कंडेंसर, फिर हॉट वेल पे चले जाता है, ठीक है। कूलिंग वाटर सर्किट। अब ये कूलिंग वाटर सर्किट कहाँ से आ गया, कहाँ ज़रूरत पड़ा, तो जो स्टीम है टरबाइन से निकलने के बाद जाता है कंडेंसर। कंडेंसर में हमने सुना है कि उसको पानी से ठंडा किया जाता है। एग्जैक्टली सही बात है कि कंडेंसर में उसको पानी से ठंडा करते हैं, पर हम उसको ठंडे पानी से नहीं मिलाते हैं। जो स्टीम है वो पाइप्स में मूव करता है और पाइप्स के आजू बाजू ठंडे पानी फ्लो होते रहता है कंडेंसर में। तो वो क्या करता है, स्टीम को ठंडा कर देता है और पानी खुद गर्म हो जाता है, ठीक है। और स्टीम ठंडा होने के बाद क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट बन जाता है। फिर उसको हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि स्टीम को मूव करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई यूनिट नहीं है। पर क्योंकि टरबाइन से निकलने के बाद ये स्टीम जबकि इसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, तो इसको हमको वाटर में कन्वर्ट करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ठीक है। तो वाटर में कन्वर्ट करने के बाद वापस इसको फीड वाटर लाइन पे फिर से मिला देते हैं। अब जो कंडेंसर में जो पानी गर्म हो गया कूलिंग वाटर के लिए जो यूज़ हुआ था स्टीम को ठंडा करने में, तो उसको ठंडा करने के लिए हम लोग कूलिंग टावर लगाते हैं। कूलिंग टावर कुछ नहीं, एक सिविल स्ट्रक्चर है जिसमें फ़ैन लगा होता है और फैन में वहाँ पर फिल्स के थ्रू उसको वाटर ड्रॉपलेट्स के टू में फॉर्म करते हैं और फैन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो उसका जो टेम्परेचर होता है उसको कम कर देता है और इसमें जो वाटर का लॉस होता है वो 3 से 4% ही वाटर लॉस होता है, ज़्यादा लॉस नहीं होता। पर जो टेम्परेचर चेंजेस है वो 30 to 40 डिग्री, कभी कभी 70 डिग्री 80 डिग्री टेम्परेचर चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो वापस ये पानी फिर ठंडा हो गया, फिर इसको टैंक में स्टोर करके वापस कंडेंसर में भेज देते हैं। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है कूलिंग वाटर का, ठीक है। हाउ कोल पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कैसे कोल पावर प्लांट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी टेक्स प्लेस इन बॉयलर। कोल इज बर्न्ड इन द बॉयलर फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। बॉयलर फर्नेस में कोयला बर्न होता है जो हीट प्रोड्यूस करता है, और कार्बन ऑफ द कोल एंड ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट। ये हीट से क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज इन टर्बोनाइज प्रोसेस, द हीट फ्रॉम द कंबशन ऑफ द कोल बॉयल्स वाटर इन द बॉयलर। जो कम हीट मिला वो क्या करता है, वाटर को बॉयल करता है टू प्रोड्यूस स्टीम। इन मॉडर्न पावर प्लांट्स बॉयलर प्रोड्यूस स्टीम एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। मॉडर्न बॉयलर प्लांट में क्या होता है कि जो स्टीम होता है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे बनता है। द स्टीम इज देन पाइप टू अ टर्बाइन। द हाई प्रेशर स्टीम इन स्पिंजेस एंड एक्सपांड्स अक्रॉस अ नंबर ऑफ सेट ऑफ ब्लेड्स इन द टर्बाइन। फिर ये जाता है टर्बाइन पे और टर्बाइन को रन करता है। रोटेट्स द टर्बाइन, द स्टीम इज दैट कंडेंसेट टू वाटर एंड पम्प बैक टू द बॉयलर, जो मैंने बताया कंडेंसर का वर्क, ठीक है। इन थर्ड स्टेज रोटेशन ऑफ टर्बाइन रोटेट्स द जनरेटर to produce electricity by Faraday's principal law of electromagnetic induction. Different types of fuel used in power plant. क्या क्या फ्यूल यूज होते हैं, ऑकरेंस और स्टेट। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, गैसेस फ्यूल यूज होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी फ्यूल मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल फ्यूल यूज होता है, ठीक है। फ्यूल यूज इन स्टीम पावर प्लांट, तो क्या क्या यूज होता है, कोल, फ्यूल ऑयल, नेचुरल गैस। इन इंडिया कोल इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हैं। क्या क्या कोल्स के वैराइटीज़ मिलते हैं, पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल होता है। ईच टाइप ऑफ कोल हैज़ अ सर्टेन सेट ऑफ फिजिकल पैरामीटर,
कितना मॉइस्चर कंटेंट है, वोलेटाइल मेटल कितना है, ऐश कंटेंट कितना है, कार्बन कंटेंट कितना है, ये अलग अलग कोल के अलग अलग हैं वेराइटीज़ हैं। पीट कंटेंट्स 90% मॉइस्चर एंड इज़ नॉट अट्रैक्टिव एज ए यूटिलिटी फ्यूल। ठीक है। कोल रैंकिंग इज़ अ मेजर ऑफ कार्बन कंटेंट। कोल में जितना ज़्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो सबसे अच्छा होगा, जिसमें लिग्नाइट इज़ कंसिडर्ड द लो रैंक एंड एंथ्रासाइट, मैंने कहा एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है, हाई रैंक में होता है। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोक्स। स्टोकर्स इन पावर ऑपरेटेड फ्यूल फीडिंग मैकेनिज्म, द वर्किंग ऑफ स्टोकर। स्टोकर कैसे काम करता है, ओवरफीड भी होता है, अंडरफीड भी होता है। ठीक है। कन्वेयर स्टोकर, स्प्रेडर स्टोकर। ठीक है। अंडरफीडर में क्या होता है, अंडरफीड में सिंगल रोटर स्टोकर और मल्टी रोटर स्टोकर, फिर चेन ग्रेट स्टोकर, ट्रैवलिंग ग्रेट स्टोकर। ठीक। इतने टाइप के हम लोग स्टोकर इसमें पढ़ते हैं। क्या होता है स्टोकर इज़ द पावर ऑपरेटेड फ्यूल फीडिंग मैकेनिज्म, कि फ्यूल को कैसे फीड करना है, ये हमारा काम होता है स्टोकर में। ठीक है। कोयला का क्या होता है, कोयल जब आपके मिल्स कन्वेयर्स के थ्रू, स्टैकर के थ्रू रिक्लेम होकर मिल्स में जाता है, बॉल मिल्स में उसको प्यूरी पाउडर फॉर्म में मैश करते हैं। बॉल मिल्स में क्या होता है कि 3 रोलर्स लगे होते हैं वर्टिकल, और एक हॉरिजॉन्टल रोलर होता है जिसमें 3 रोलर मूव करते हैं, और उसमें कोल ऊपर से एक साइड से गिरता है उसमें। फिर क्या होता है, ये बॉल मिल्स में उसमें मैश किया जाता है। इसका 0.7 to 0.9 माइक्रोन इसकी साइज़ होती है। फिर एयर के थ्रू, एयर का एक प्रेशर होता है गर्म हवा का, वो उसको लिफ्ट करते जाता है। तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो उतने साइज़ के हो जाते हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं, और बाकी जो हार्ड जो बड़े साइज से कोल होते हैं वो वहीं पर ही रह जाते हैं, ड्रैग नहीं होते हैं। फिर वो लिफ्ट होने के बाद वो जाते हैं वहाँ पर स्टोकर्स में। स्टोकर्स क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस में। जो आपका जो बॉयलर होता है वो स्क्वायर सेक्शन में होता है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शंस में या रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शंस में। ठीक है। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में होने की वजह से क्या होता है, उसमें चारों तरफ से कोल आपको अंदर फायर करना होता है कोल गन के थ्रू। ठीक है। क्यों चारों तरफ से, अगर हम लोग एक तरफ से लंप गिरा दें तो वो एक ही तरफ जलने लगेगा कोयला, इसीलिए चारों तरफ से एयर के थ्रू, एयर प्रेशर के थ्रू वहाँ पर से 8 से 9 kg का एयर प्रेशर अंदर भेजते हैं उसमें साथ में लिफ्ट करके, और उसको फिर वहाँ पर बॉयलर पे रोटेट करते हैं। ठीक है। उस जगह पे वो वहाँ पर रोटेट करने के बाद वहाँ पर चारों तरफ से जब कोयला उसमें गिरने लगता है बराबर अमाउंट पे, तो वहाँ पर क्या होता है, एक फायर बॉल वहाँ पर बनने लगता है। ठीक है। वो फायर बॉल क्या करता है, थ्रू आउट अलग अलग हाइट पे ये बने हुए रहते हैं, जो गन रहते हैं, ये स्टोकर्स रहते हैं, वो अलग अलग हाइट में रहते हैं। तो फायर बॉल जो है कंटिन्यू एक बॉयलर के हाइट तक बना हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि टेम्परेचर बराबर मेंटेन किए रहते हैं। कोल को चालू करने के, कोल जलाने के पहले हम लोग वहाँ पर लिक्विड फ्यूल के स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो टेम्परेचर है उसको जल्दी अचीव कर सकें। कोयले से उसको अचीव करने में बहुत टाइम लगता है। एक बार जब हम लोग टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं लिक्विड फ्यूल यूज़ करके, उसके बाद हम लोग कोल फायरिंग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और लिक्विड फायरिंग को धीरे धीरे स्टॉप करते हैं। ठीक है। ये एक स्टोकर का काम होता है। थैंक यू।